Hi students, greetings from SDMIC classes. Please understand, nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. Be brave and you should have a willing mind to set a goal and achieve that. Subject is Bookkeeping and Accountancy. Chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. This is the fourth recorded video class. Hope you must have watched my previous 3 classes. I believe you all must have understood that. Now I request you all to pay attention. Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. So far what we learned, just have a glimpse of that. What is partnership we learned, definition of partnership we learned, and what is a firm, that is partnership business, and partner and partners that we learn. Now features of partnership, partnership deed, contents of partnership deed, importance of partnership deed, provisions of Indian Partnership Act 1932, partners capital accounts, fixed capital method, under fixed capital method, fixed capital account and current capital account. Under fixed capital method, 2 capital accounts are maintained, one fixed and the other one is current capital account, and then a fluctuating capital account. Now then we also learned adjustments related to capital accounts, and we also worked out some examples of maintaining partners capital accounts. Some sums also we sold. If you have not understood, please watch those 3 videos again and again, so you will come to know that. It's not that much difficult. When I teach you, there will be a professional touch towards that, because I'm teaching with a professional approach, so you can have a look, and that's going to be a practical thing when you learn and go for higher studies and for a job or anything. It will be very much helpful. So prepare to learn like that. Let us move to the today what I am going to teach you all. What are the contents we have to understand. There are some adjustment entries that we have to learn, that will not appear in the primary stage of the at the time of extracting the trial balance. These entries will not be there. So these are the adjustment entries you have to understand. So before preparation of the trial balance, before starting the finalization, the first step is to prepare a trial balance. So that all you will come to know when I will explain one by one. So what are the adjustments we have to learn? For preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet with the following adjustments. First, the primary stage is, this is already explained earlier also. So before the preparation of the final accounts, the first step is to prepare a trial balance. When a trial balance is prepared, so from the extract from the ledger, then it is a first trial balance. In that there won't be any adjustments, and after that there will be some adjustment entries passed, and then again a trial balance is prepared. That is a trial balance after considering the adjustments. So from that we will make the profit and loss account, trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Now which are some of the adjustment entries we will just learn. One closing stock, second outstanding expenses. These entries will not come in the first trial balance. Then we pass the journal entries. These are the adjustment entries. Then we again prepare a trial balance, that is after considering the adjustments. All these adjustment entries are the following, as I am telling: closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, income received in advance. These entries has to pass separately before making the final trial balance, and before making that final accounts also, trading profit and loss account and balance sheet. Then income receivable, bad debts, provision for doubtful debts, reserve for discount on debtors and creditors, depreciation entries, depreciation working and depreciation entries, interest on capital, drawings and loan,
interest on investments and loans given, goods destroyed by fire, accident, or insured and uninsured, then goods stolen, goods distributed as free samples, goods withdrawn by partners, unrecorded purchases and sales, capital expenditure included in revenue expenses or vice versa, means revenue expenses included in capital expenditure, like that. This should not happen. Bills receivable dishonored, bills payable dishonored, deferred expenses was also explained earlier, like some expenses which these are fictitious expenditure, fictitious assets, like some long-term advertisement campaigns done, and part we are writing off, and the remaining should be carried forward to the balance sheet. So these expenses are deferred expenses. Deferred expenses are deferred over a period of years. So then capital receipts included in revenue receipts and vice versa, like the capital expenditure included in revenue expenses, like same way capital receipts included in revenue receipts and vice versa, just opposite also. Then commission to working partners on the basis of sales, gross profit, net profit, etc. So commission to partners on the basis of sales. Some commissions may be allowed on the basis of sales, or some may be on gross profit, some may be decided or fixed on this should be decided and agreed in the partnership deed, and sometimes the commission may be fixed on net profit, like that it is. Mostly on net profit it is, or sometimes it is on sales basis. So now these are the adjustment entries we have to, the means accountant has to pass before preparing the trading account, profit and loss account, and balance sheet. So after passing these entries, we again extract a trial balance, that is called as a final trial balance, considering means after considering all the adjustment entries. So then after once these entries are passed, the final trial balance will be ready and can prepare the final accounts, trading account, profit and loss account, and balance sheet. Now let us move to the other part. So I think this is not that much complicated, it is very easy. Competency statements. So once the students learn all these things, now students will be able to understand the meaning of final accounts, know the need and importance of final accounts, know the effects, adjustments in final accounts, know the meaning of trading account, profit and loss account, and balance sheet. Know how to find out financial results of the business. Means so once this the students do all the means this entries and all this thing, now they learn that now the students must be able to understand the meaning of final accounts. What is the meaning of final accounts, why it is prepared, and what are the implications of that, and then how to know the need and importance of final accounts. It's very very important. And how to know the effects of adjustments in final accounts. जो final accounts में जो adjustments entries जो pass करते हैं, जो उसके effects का जो होता है वो सब समझना चाहिए. Means when you grow and just get into a job or something, no, it will be, if you are doing a business also, you should be able to understand that. These are the effects. Some of this is very important, and a businessman also should understand these things. Know the meaning of trading account, profit and loss account, and balance sheet, and know the how to find out financial results of the business. मतलब ये जो सिर्फ ये जो financial accounts, trading profit and loss account and balance sheet बनाने के बाद में उससे काम हो गया, वैसा नहीं. उसमें से जो analysis, उसमें से जो interpretation जो होता है ना, I mean जिसको चाहिए, means which type it should be used. For example, managerial purpose के लिए, जो decision making के लिए, cost finding के लिए, price fixation, selling price क्या रखना है, or what is the thing and what are going to happen, what is all these things के लिए ना, marketing method, ये सब फाइंड आउट करने के लिए जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो 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 बनाता है, तो एनालिसिस करने के लिए भी वो मालूम पड़ जाता है.
So and over a period of time, what is the effects and what is the rise in profit or means a reduction in profit, why it is, all these things we will come, the person who should come to know. Now introduction. As per the sole proprietary concern, we will also prepare the final accounts of partnership firm. जैसा मीन्स मैंने पहले भी बोला था, मीन्स जो प्रॉपरेटरी कंसर्न का जो लास्ट ईयर में जो 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा है जो प्रॉपरेटर्स फाइनल अकाउंट, तो उसका में जो सब मीन्स सीखा है उसके हिसाब से ये खाली वो जो कैपिटल अकाउंट और ये सब का ये थोड़ा वो उसमें फ़र्क रहता है, सम एडजस्टमेंट एंट्रीज में थोड़ा फ़र्क करते हैं, बाकी तो 99% सिमिलर ही हो जाता है. ओके, अदरवाइज मे बी सही मीन्स 98% तो सिमिलर ही होता है. एक जो 2% जो रहता है दैट इज सम वेरियस जो टर्म्स का जो हिसाब से होता है, और डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका थोड़ा चेंजेस हो जाता है. अदरवाइज इट इज़ प्रॉपर्टी कंसर्न का और पार्टनरशिप कंसर्न का सब ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट कैपिटल ये टाइप का. So as per the sole proprietary concern, we will also prepare the final account of partnership firm, the income statement and the financial position statement. Income statement is trading account, profit and loss account. Financial position statement is balance sheet. So final account is the last stage of accounting procedure. मतलब जो bookkeeping हो गया, posting हो गया, सब entries हो गया, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, देन एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पास किया, देन फाइनल ट्रायल बैलेंस निकाला, एंड और उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया. दिस इज़ द फाइनल अकाउंट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर. तो उसके बाद में वो अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है उसका क्लोजिंग एंट्रीज पास करता है. तो दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनलाइजेशन होने के बाद में वो पर्टिकुलर ईयर का उधर खत्म हो जाता है, मीन्स दैट इज़ द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. देन नेक्स्ट ईयर वो कैरी कंटिन्यू हो जाता है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जो एंट्रीज जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलते रहता है. जनरली फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में ये जो जनरल जो स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं. नो वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग द मीन्स पहले हम लोगों ने बोला था जो मीन्स जो बुक कीपिंग आने के बाद में जो उसमें से जो पोस्टिंग करते हैं, हाँ, और पोस्टिंग से जो उसका रिजल्ट्स बनाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ये सब निकालते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग. हम लोग ने जो फर्स्ट हम लोग ने सीखा था, मीन्स वो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग ने सीखा था बुक कीपिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, एंड देन अकाउंट्स, व्हाट इज़ अकाउंट्स, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, what is accountancy, all these things now we have learned. So same way now जो accounting में जो उसका steps है, first and foremost thing, preparation of journal and subsidiary books. मतलब subsidiary register में जो entry करने के जो recording करके the bookkeeping part is first thing, means preparation of journal and subsidiary book. And then it comes to preparation of ledger, that is from the subsidiary registers or journal register it is posted to the ledger, it's posting. Then preparation of trial balance, this is the first trial balance, fresh trial balance we can see, that we call this as virgin trial balance. There won't be any adjustments or anything. This is fresh trial balance extracted from the ledger. Then adjustment entries, like we learned in the earlier stages. For example, depreciation workout करने के बाद में उसका जो entries pass करता है. Same way if there is any prepaid expenses, वो prepaid expenditure का जो है वो जो total expenditure जो रहता है उसमें से जो next year का जो दिया है वो part separate करना पड़ता है. Same way prepaid income, कुछ हम लोगों को income total income में आया रहेगा, उसमें से जो next year का जो इनकम है उसको सेपरेट करके उसको कैरी आउट करना, तो वो एंट्रीज बाद में होता है. सो वो सब सारा जो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होने के बाद में अगेन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स. देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विच कंसिस्ट ऑफ सी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet. See this trading account now for this manufacturing or means जो processing concerns को जो trading account बनाते हैं. Otherwise if it is a just retailer then ये trading account नहीं आता है. There is only profit and loss account बनाते हैं. Income and expenditure नहीं, sorry,
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अदर कंसर्न्स को होता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर या सोसाइटीज़ जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटीज़, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है. Whereas in a business concern, it is a manufacturing or a processing organization. It is a trading account, then a profit and loss account and a balance sheet. Whereas it is just a sole trader, means so just like means जो material खरीदता है retailer, उनको profit and loss account and balance sheet बनाता है. So now you know, means you understood that this is very simple, it's not complicated. ये steps आप समझ लीजिए, this is the step. और ये सब जो basic जो समझ में आने के बाद में सब easy हो जाता है. You become an accountant. इससे समझ लीजिए. You can अगर if you learn this well, these are the steps. ये सब समझने के बाद में आप accountant बन गया, उसने ही समझ लो. You can do that. Only thing is that अभी थोड़ा उधर कॉमन ये हो जाना चाहिए. मीन्स व्हेन डॉक्यूमेंट, व्हेन यू सी दैट व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट विच अकाउंट इट शुड टेक, वो थोड़ा समझने के लिए वो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हो जाएगा. सो प्रैक्टिकल काम करते करते भी हो जाएगा. और सीखना चाहिए, वो समझने के लिए थोड़ा स्किल चाहिए, दिमाग चाहिए. तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस आ गया, वो सेल्स इनवॉइस है क्या, या कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या, या मीन्स जो मटेरियल परचेज किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है क्या, कैपिटल का है क्या, या रेवेन्यू का है. नॉर्मली जो रेवेन्यू आइटम का ही होता है, जो वेरी रेयरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम में जो कुछ भी रिसीट होगा, कुछ एसेट्स का कुछ जो पुराना एसेट्स वो सेल हो गया, तो उसका जो वो कैपिटल रेवेन्यू हो जाता है. तो कैपिटल रेवेन्यू मीन्स जो नॉर्मल रेवेन्यू में नहीं लेता है, तो रेवेन्यू को उसकी वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. नॉर्मल केसेस में रेवेन्यू मीन्स जो हो जाता है, रेवेन्यू इनकम हो जाता है, कैपिटल इनकम नहीं होता है. रेयर केसेस में कैपिटल इनकम होता है और रेवेन्यू इनकम नॉर्मल केसेस में हो जाता है. सो वो सब आइडेंटिफाई करना और ये सब जो करना थोड़ा ये है. वो बिल आएगा तो उसको कौन सा अकाउंट में, कौन सा इसमें, बिकॉज दिस अफेक्ट्स द ग्रॉस प्रॉफिट एंड there is a very importance to understand what is a gross profit and what is the importance of gross profit and what percentage it should keep. And then again it should be then the second part, the profit and loss account of profit, net profit. So when any means a trading item goes to the revenue profit and loss account part, and profit and loss account expenditure or income go to the trading part, there will be a difference in variation of GP, but net profit will not change. That will be ultimately the same, but GP there will be a difference होगा. That should not happen. So you should be prepared for that. So these are the general steps and this is very easy. एक जो इतना steps आप पढ़ने के बाद में थोड़ा जो अपना जो क्वेश्चन आंसर्स होएगा तो एकेडमिक के लिए हो गया, जो आपको मार्क्स अच्छा स्कोर करने का जो हो जाएगा. और ये जो है जो प्रोफेशनल टच है, यू कैन बिकम एन अकाउंटेंट ऑन सिविल दिस आफ्टर 12th ओनली यू कैन स्टार्ट डूइंग जॉब. नाउ नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्या ज़रूरी क्या है जो फाइनल अकाउंट्स बनाने का. सो देर आर वेरियस पर्पसेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एज फॉलोस. ये तो लास्ट ईयर में तो मैं बार बार समझाया था, फिर भी जो 11th में अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. वाई हम लोग ये जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाने का है, मैंने इसका जो फर्स्ट इसमें भी बताया था. तो स्टिल हम लोग वापस पढ़ते हैं. So what are the purpose? Various purposes are there. So one, to find out gross profit or gross loss incurred during the year. इसमें क्या होता है, तो मीन्स अभी मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है. मतलब जो फर्स्ट ट्रेडिंग पार्ट है, ट्रेडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो ट्रेडिंग पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जो उसका जो नेट रिजल्ट होगा, डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो वो है वो फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना रेशियो में रखने का है, क्या है, वो सब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उसको वेरिएशन होता है. तो ये इसके उस बेसिस पे होता है, ट्रिक्स है ये सब. मीन्स मतलब एक एडवांस एंड सीनियर अकाउंटेंट का एक ट्रिक्स ये सब कितना है प्रेसेस पे रखने का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब ये सब देखता है मेनली. देन सेकंड, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस
ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर. जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, यू नो व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 एंडिंग ऑन 31 मार्च. सो ये जो 12 मंथ्स का जो है उसका फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो साल में हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए, और सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द year, particular year. Then third, to know the financial position of the business at the end of the year. What is how to know what is a statement called the to know the financial position? That is balance sheet. To prepare the balance sheet, to know the financial position, to find out द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. मैंने प्रीवियसली जो क्लासेस में सब बताया था, एंड मेरा जनरल वीडियोस भी है इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, वो भी देख सकते हैं अगर टाइम रहेगा तो. इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो. मीन्स अभी फॉर एग्जांपल बोलेगा आज का तारीख में अपने को लेने का कितना है मार्केट से, तो वो डेटर्स का जो लिस्ट है, डेटर्स का जो रिसीवेबल का जो लिस्ट निकालेगा, देन वी विल कम टू नो, वो पता चलने के लिए. और आज के तारीख में हम लोगों को कितना पेमेंट देने का है कंपनी को बाहर, जो मटेरियल लिया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले कैपिटल आइटम लिया उनको, जो रेवेन्यू आइटम का जो लिया, जो रॉ मटेरियल और ये सब परचेस किया उसको, जो अदर परचेजेस का कितना लिया है, जो कुछ एम्प्लॉयज़ को या किसको सब देने का कितना है, ये सब मालूम पड़ने के लिए जो ये लिस्ट आउट करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. सो देन टू प्रिपेयर द वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग. मतलब बाकी सब अभी मैनेजरल अकाउंटिंग, अभी उनको फ्यूचर में क्या करने का है, जो लास्ट 2 साल 5 साल का कितना हुआ और अभी आगे क्या है, जो ग्रेजुअल इंक्रीज है क्या, या देयर इज एनी डिविएशन, कुछ रिडक्शन, तो रीज़न क्या है और आगे क्या करना है, ये सब फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाता है. तो नाउ टू फाइंड द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. अभी समझो कुछ आगे कुछ बड़ा कुछ करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है. तो ये सोर्सेस जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के लिए सोर्सेज ऑफ फंड ज़रूरत है. मतलब कुछ काम जो आगे का जो कुछ करना है तो फंड्स का ज़रूरत है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के लिए सोर्सेज ज़रूरत है. तो सोर्सेज कहाँ करने का है, कैसा करने का है, ये सब डिसाइड करने के लिए जो अपना जो कंटिन्यूस जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट का जो है ना, जो रिजर्व्स का ज़रूरत पड़ता है, उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है. तो ये फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ये करने के लिए. 7, to find out the value of goodwill for the purpose of reconstruction of firm. अभी goodwill, you know, means goodwill is an intangible asset. मतलब देख नहीं सकते, but it is an goodwill. मैंने previous year में मतलब आपका जो 11th स्टैंडर्ड में सब जो इसके बारे में सब क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है. गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच गिव्स द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. मतलब अभी उसका एग्जाम्पल भी बताया था. फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदुस्तान लिवर का जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस जो है, और सेम टाइप का एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक पेस्ट का समझो, वो टूथपेस्ट का बाहर का दो अनब्रांडेड कंपनी बनाएगा, उसका प्राइस और इसका प्राइस में काफ़ी फ़र्क रहता है. HLL का तो प्राइस ज़्यादा रहता है, और whereas the cost of production will be very low compared to the this small producer. Small producer का cost of production ज़्यादा रहता है because there is a limited production, whereas in HLL is a mass production. तो ज़्यादा जो वॉल्यूम बनाएगा तो कॉस्ट कम हो जाता है, और इधर लो वॉल्यूम बनाएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी उसको मार्केट में कम प्राइस में बेचना पड़ता है बिकॉज देयर इज़ नो गुडविल, उसका नहीं रहता है. वेरस इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी उसको ही सेल्स एट हायर प्राइस. रीज़न इज़ दैट बिकॉज दे हैव ए गुडविल, और गुडविल के हिसाब से वो होता है. सेम में टाटा का यस जो भी रहता है ना, देयर आर ब्रांडेड जो होता है उसको, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल. जो रेपुटेशन में जो प्राइसिंग होता है उसके साथ उसको गुडविल बोलता है. ये गुडविल का वैल्यू के ऊपर है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है, और ये सब उसका
सेल होता है, गुडविल का हिसाब से ये सब पब्लिक आता है ना इन्वेस्ट करने के लिए, मनी इन्वेस्ट करने के लिए सब आता है। और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड्स देने के लिए, लोन या कुछ भी देने के लिए वो ये सब रहता है। व्हाट इज़ अ गुडविल, ये गुडविल का वैल्यूशन होता है। और सेम वे कोई पार्टनर आएगा तो गुडविल का वर्किंग करता है, उसके हिसाब से उसको ये फंड्स लाना पड़ता है ना। सेम वे कोई पार्टनर रिटायरमेंट होएगा तो भी उसको जो गुडविल, कंपनी का गुडविल निकालेगा, उसका गुडविल का शेयर उसको देना पड़ता है। बिकॉज कंबाइंड इफेक्ट एफर्ट से बनाया हुआ रहता है ना, जो फर्म का जो बिजनेस ये सब सेटअप किया हुआ रहता है। तो कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहे तो या उसको छोड़ रहे तो उसका टोटल तब तक का गुडविल का वर्कआउट करके उसका शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ता है। सो ये सब के लिए गुडविल का ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, मतलब एक पार्टनर रिटायरमेंट होके जाएगा तो ये सब आप लोग बाद में पढ़ेगा, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो आता ही है, अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये सब आता है ना, तो वो टाइम में वापस ये गुडविल का सब हम लोग पढ़ेंगे। बट स्टिल अभी आपको इधर ये बताएगा तो आगे आपको जाएगा तो ये क्या है करके ऊपर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अभी से अपने को माइंड में ये जो आएगा सो गुडविल ये है करके। सो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फर्म में मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट ये सब में भी या टाइम में भी ये आ जाता है। 8 टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म like income tax, GST, many other taxes. Several taxes are the profession tax. There are various taxes. Profession tax होता है और same way various other items are there. Municipal tax ये सब है ना, बहुत सारा आता है। तो to calculate the way, लेकिन जो taxes जो calculate होता है तो जो बिल में जो हम लोग ने जो चार्ज करते हैं, रिकवरी करते हैं, वो है GST। और जो अपना जो इनकम में से जो टैक्स देना पड़ता है, जो नेट प्रॉफिट हम लोग बनाए अर्न करेगा, उसमें से जो टैक्स देना पड़ता है दैट इज इनकम टैक्स। वेयर से गुड्स में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज में जो हम लोग जो कस्टमर से जो कलेक्ट करके कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देते हैं दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। So for preparation of final accounts, the first and foremost thing is to prepare the trial balance. So already मैंने आपको बताया था, trial balance is a list of डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, ये जो टोटल आपको ट्रायल जो लेजर का जो ऑलरेडी बताया था, उसका दो पार्ट रहते हैं, एक ही पेज में दो पार्ट रहते हैं। सेंट्रल में एक लाइन रहता है, राइट साइड क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड डेबिट साइड ऑफ द पेज, वो उसका। तो उसमें से जो दोनों का टोटल करके जो डिफरेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा, वो बैलेंस, इफ इट इज़ अ डेबिट बैलेंस इट विल बी टेकन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस इट विल बी टेकन इन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट कॉलम और डेबिट कॉलम उसमें ले लेते हैं ऐसा रेस्पेक्टिवली। देन इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। ये जो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है लास्ट ईयर में, double entry, what is who find out who invented and means started the double entry system, Luca Pacioli in 1494 में ये किया था। दिस बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक साइंटिफिक मेथड है ना। मतलब अभी फॉर एग्जांपल जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए, इट डजंट मीन दैट देयर इज अ प्रिंसिपल ये करेक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को ये जो फाइंड आउट करने के लिए, वो क्लियर है क्या देखने के लिए। वंस द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ओके, देन बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर बनाएगा, और जो टोटल कैरी टू द बैलेंस शीट में लेगा तो बैलेंस शीट मस्ट टैली। सो वो जो मेन एक हडल था इन ड्यूरिंग इन आवर अर्लियर ईयर्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, तो तब सब टाइम में मैनुअल रजिस्टर बनाना पड़ता था। वो टाइम में सबसे बड़ा हडल था, सबसे बड़ा हज़ार्डस डिफ़िकल्ट ये था
प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा तो वीक्स एंड मंथ्स लगता है वो फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए और टैली करने के लिए. वंस द ट्रायल बैलेंस इज टैलीड देन ओनली द आगे का जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेगा, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएगा. सो इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दैट टाइम. नाउ यू शुड नो द प्रिंसिपल, दो नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज द जो अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर्स है, फैंटास्टिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है, जो अकाउंटिंग पैकेजेस में क्या है, एक एंट्री मारेगा तो वो पूरा उसका इफेक्ट हो जाता है. और उधर अपने आप वो जो डबल इफेक्ट ले लेते हैं, एक डेबिट एंट्री होता है, एक उसका एक क्रेडिट सामने एक क्रेडिट भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स किया, सेल्स का क्रेडिट करते हैं और कस्टमर को डेबिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है. बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ अ सिस्टम. वो अर्लियर हमारा जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड था उसमें जो एंट्री जो रजिस्टर में से निकाल के जो पोस्टिंग जो करता है तो टोटल इसका जो सर्विसिविटीज है सेल्स का क्रेडिट करना पड़ता है और उसको जो टोटल डेटर्स है और डेटर्स को डेबिट करना पड़ता है, तो उसको इक्वल अमाउंट का जो एंट्री हो जाता है. सो जो भी एंट्रीज पास करते थे मैं बहुत ध्यान से देना पड़ता है. इफ़ देयर इज हियर एंड देयर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होता है, वो टैली नहीं होता है. टैली नहीं होएगा तो फाइंड आउट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बट दैट डिफिकल्टी इज सोल्व्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. Now, so trial balance is prepared to know the arithmetical accuracy of accounts. ये जो trial balance क्यों बनाता है, arithmetical accuracy of accounts. इसका मीनिंग ये नहीं कि मैंने बहुत बार ये रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपका जो माइंड में प्रॉपर बैठेगा. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्लियर हो गया, मीन्स देयर इज़ नो अरिथमेटिकल डिफरेंस, कुछ मिस्टेक नहीं है, ट्रायल बैलेंस से टैली हो गया है. टैली होता ही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन मैनुअल अकाउंट में जो करेगा ट्रेडिशनल मेथड में बनाएगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो तो डिफिकल्ट है. नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर because of the sophisticated and very advanced and very fantastic accounting softwares. लेकिन ये नहीं है कि अकाउंट जो आपने जो बनाया है वो प्रॉपर ही होगा करके. इफ़ देयर इज़ एनी प्रिंसिपल एरर्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक परचेस बिल आ गया, वो परचेस बिल को आपने सेल्स में एंट्री किया, सेल्स को तो वो तो सेल्स में गया और डेबिट क्यों किया, तो कस्टमर को सप्लायर को क्रेडिट करने के जगह पे सप्लायर को डेबिट किया और परचेसेस को डेबिट करने के जगह पे परचेस को डेबिट किया, ऐसा हो जाएगा. सो इस क्योंकि आप यू हैव टेकन इट इन द रॉन्ग अकाउंट. वो सेल्स में गया, सेल्स में तो क्रेडिट साइड में गया, और ये जो इधर परचेसेस में जो क्रेडिटर को एक्चुअली क्रेडिट मिलना चाहिए था सप्लायर को, उसके जगह पे वो डेटर टाइप का जाके उसको जो कस्टमर उसका जैसा कंसिडर करके कस्टमर का जो उसका हिसाब से उसको डेबिट कर दिया. सो प्रिंसिपल गलत हो गया, प्रिंसिपल एंट्रीज डिफरेंट हो गया. ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स आ जाएगा. तो प्रिंसिपल करेक्ट होना चाहिए. प्रिंसिपल इफ इट इज रॉन्ग, दिस अकाउंटिंग दिस विल बी रॉन्ग. दो द arithmetically it is equal, there is no difference, but principally if it is wrong, then there will be problem in the account will not give a proper report, proper result. You understood, no? It's not that much difficult. आप थोड़ा दिमाग अप्लाई करेगा, just apply your brain, it will be very easy to understand. Now final accounts consists of, ये तो already हम लोग ने बताया था, trading account which shows the gross profit or gross loss for a period. Second, profit and loss account which shows the net profit or net loss of the firm for a period. Then C, balance sheet which shows the financial position of the business of the firm in the form of assets and liabilities as on date or at the end of a financial year. So no need of a repetition. Okay, so we already learned this. Now let us move to the other part. What is this? Notes. Let us see some notes how to while making the final accounts. Every item in the trial balance must be shown only one time and just one part of the final accounts, excluding silent hidden adjustments. जो भी एंट्री जो होता है ना जो ट्रायल बैलेंस में, एक
जो इसका एक साइड में एक बार डेबिट में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, एक्सक्लूडिंग हिडन एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, मैंने ऑलरेडी बताया था। उसके फर्स्ट ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट होने के बाद में ये जो ट्रायल बैलेंस में वो उसका इफेक्ट ले लेता है। Every adjustment must have two effects in final accounts, that is one debit and other credit। अभी फॉर एग्जांपल जो एंट्रीज पास करके जो सेकंड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा, डायरेक्टली अगर एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट्स में जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज से भी पास करते टाइम में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में करते टाइम में यू शुड कंसिडर टू इफेक्ट्स, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम जो सोल्व करेगा इसमें जो नॉर्मली क्या होता है, जो व्हेन यू आर इन जॉब और कुछ जॉब कर रहे हैं, तो जो एंट्रीज पास करने के बाद में सेकंड ट्रायल बैलेंस आपके हाथ में जाता है, तो उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है। वेयरएज इन व्हेन यू मींस यू आर डूइंग ए सम, एग्जाम में आपको कुछ सम देगा क्लासेस में या एग्जाम में कुछ सम देगा, तो वो एंट्रीज हम लोग ट्रायल बैलेंस में पास नहीं करेगा ना, तो नहीं होता है। बुक्स ऑफ एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो शीट आपके पास, वो शीट में से देके आपको जो एंट्रीज डायरेक्टली आपको इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में देना पड़ेगा। इसमें से किसी में डायरेक्टली एंट्री पास करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री करते टाइम में हमेशा ध्यान रखना, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मस्ट हैव गिवन टू इफेक्ट्स। एक डेबिट एंट्री का दिया रहेगा, तो उसको एक सामने एक क्रेडिट एंट्री कुछ ना कुछ अदर अकाउंट में, इधर बैलेंस शीट में या नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट में, किस में तो गया रहेगा, तो वो ध्यान रखना। So if there is a credit entry, there should be a debit entry. If there is a debit entry, debit effect, there should be a credit effect should be given in some of the accounts. So ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। So without that ना आपका जो सम सोल्व करेगा तो इमीडिएटली आपका आउट, अगर वो कुछ मिस्टेक हो गया तो आउट हो जाएगा। यू नॉट बी एबल टू टैली द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा, तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर वो पूरा गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखने का है, एक एंट्री अगर जो आपका जो एडजस्टमेंट एंट्री दिया है, तो एडजस्टेड एंट्री में वो इफ इट इज़ अ डेबिट इफेक्ट का रहेगा, तो वो डेबिट इफेक्ट अगर देते टाइम में सामने क्रेडिट इफेक्ट भी देने का है, in some account, maybe in trading account or it may be in a balance sheet, उसका रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में देना पड़ेगा। और उसमें भी है अभी ये सिर्फ इट इज़ इन बैलेंस शीट, इट इज़ अ बैलेंस शीट आइटम, वो एक क्रेडिट अगर डेबिट में मीन्स मतलब क्रेडिट एंट्री अगर जो लायबिलिटी साइड में आ गया, उसका एंट्री उसका जो इफेक्ट है जो उसका सामने एसेट साइड में भी देना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ नॉट ए मीन्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आइटम, अगर वो नहीं रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम रहेगा तो उसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने का। और इफ इट इज़ अ बैलेंस शीट आइटम, उधर भी वो जो दो इफेक्ट जो रहता है वो लेना पड़ेगा। इफ इट इज़ ए लायबिलिटी साइड का जो एक एंट्री अगर पास करने का है तो इट इज़ ए क्रेडिट, सो क्रेडिट का जो उसका जो डेबिट इफेक्ट होगा वो तो एसेट साइड में देने का। सो यू रिमेंबर दैट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। Now third, we have already studied the final accounts of proprietary concern in 11th standard. आप लोग ने तो मैंने बार बार बता रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में, HSC 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ने proprietary concern का फाइनल अकाउंट्स का किया है। So most of the theory part, explanation of journal entries and effects of journal entries are similar. ये सब में maximum जो almost everything except few are same. So to avoid repetition, common explanations are not given in standard 12. वो वापस standard 12 में repeat नहीं कर रहा हूँ, फिर दो भी मैंने बताया है बहुत सारा, लेकिन you can just refer that also. But explanations and journal entries of new adjustments are given. For example, जो भी नया जो आएगा उसका explanations और journal entries का और उसका adjustments का entries का effect बताया जाएगा। Now for common explanation you can refer the last year's that means standard 11th final accounts of proprietary concern, उसमें जाके आप देख भी सकते हैं। Okay, those who are subscribed students they can watch that 11th standard। अगर कुछ डाउट रहेगा तो इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड।
Okay, now we are taking up to this today. We will continue in the next class. Now our conclusion will just the same what I repeat every time. I request all my students to study regularly and sincerely. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वॉच अगेन एंड अगेन. कुछ समझ में नहीं आएगा तो बार बार देख लीजिए और आप उस हिसाब से आपने वो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए. टेक्स्ट का अपने पास अपना ये डिजिटल टेक्स्ट बुक भी है. टेक्स्ट चैप्टर वाइज शेयर किया जाएगा अगर ज़रूरत रहेगा. नोट्स है और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर से सम्स प्रॉब्लम सोल्व किया सब कुछ है. और ये सब है ना, यू इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वॉच अगेन एंड अगेन यू विल कम टू नो दैट. The reason why I am telling you that because I want my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. क्योंकि मैंने कुछ ये जो प्रूव किया हुआ है, some of my students scored 100% marks in accounts, and some of the ICSE students of commerce 10th standard they got 100%. So these are it's not that much difficult. If you just do some hard work with a sincere hard work, you will definitely get it. इसका सबसे ज़्यादा important क्या है, most important क्या है, you all must make a strong base in the subject. That decides your career. आगे का जो आपका फ्यूचर का जो भी कैरियर जो डिसाइड करता है वो इसके बेसिस पे होगा. आपका जो सब्जेक्ट में ये फील्ड में आप जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट में आपका जो स्ट्रॉन्ग मास्टर होना चाहिए तो आपको आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं. सो प्लीज़ रीड अगेन एंड अगेन, लर्न एंड प्रैक्टिस टू अचीव योर लाइफ्स गोल. मन में वो ध्यान रखना चाहिए. नाउ प्लीज़ नोट, from chapter 2 onwards only subscribed students can watch my video classes. The reason is that I will make it private, so only the subscribed students with steps in the contacts, they can only watch. I will be shared to them only from chapter 2 onwards. Up to chapter 1 I will be putting it a public. I will publish it in public and whereas in chapter 2 onward it will be published as private. So those who are registered subscribed, those students can only watch the classes. I don't want to just there are several people just taking and using as their this thing, so that I don't want. So my students and my classes, my teaching should be in that way, and then my students should score maximum and full mark and to become a master in the subject. Now my message, help each other to grow together for a better India. अपने सामने आमने सामने मीन्स आपस में हेल्प करके म्यूचुअल हेल्प करके आगे बढ़ने का है. फॉर द फ्यूचर, द यंग जनरेशंस आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो आप जो आपस में मदद करके आगे बढ़िए. देयर आर वेरी गुड स्कोप इन इंडिया फॉर बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वी नीड मोर स्किल्ड एंड यंग स्किल्ड मैन पावर फॉर आवर कंट्री. एंड सो आप हेल्प करके मोर एंड मोर यंग skilled and highly skilled and means intelligent students निकलना चाहिए, आना चाहिए. So now I request you all to share the videos to reach more and more people so that many students can take the benefit and also interested persons can take the benefit. आप ये जो वीडियो जो आपके पास जाएगा वो आप शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को. आपका जो फ्रेंड सर्कल में आपका कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर लीजिए और बहुत ज़रा जिसका आपका कॉन्टैक्ट्स जितना भी रहेगा उसको शेयर कर लीजिए. सो दैट नो, और स्टूडेंट्स रहेगा तो उसको सब्सक्राइब करके जो मेल करने के लिए बोलो या व्हाट्सअप डालने के लिए बोलो. और या नहीं तो मीन्स अभी और कोई भी इंटरेस्ट मीन्स में जनरल वीडियोज़ भी जिसको भी मीन्स अकाउंट्स में जॉब चाहिए, प्रैक्टिकल अकाउंट्स जो होता है जो अकाउंट्स में जॉब चाहिए तो, और कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में जब सीखना है, मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग जनरल पब्लिक के लिए जो सीखने के लिए जिसको जो इंटरेस्ट है, कुछ जॉब लेना है ये जो फील्ड में, तो उसके लिए भी मैंने पब्लिक के लिए वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में. तो दे कैन ऑल्सो लर्न दैट. ओ एवरीबडी कैन सी दैट बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी दैट मीन्स सब्सक्राइब स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, सबको मिलेगा बिकॉज आई विल पब्लिश इट एज पब्लिक बेसिस पे उसको पब्लिश करेगा. तो एनी वन कैन वॉच दैट. वेरएज क्लासेस जो रहता है चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स खाली सब्सक्राइब स्टूडेंट्स को ही मिलेगा. Okay, so please share it
जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आप शेयर कर लीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर कंटिन्यूस सर्विस। ये सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।